Hello dear students, myself Rajesh Kumar, and in the last video we have discussed the sectors of economy, and in the sector of economy chapter we have discussed the primary sector, then secondary sector and tertiary sector, and why the primary sector is called as the agriculture sector, and why the tertiary sector is called as the service sector, and why the secondary sector is called as the manufacturing or industry sector. And then we have discussed the important different types of the example related to these primary, secondary and tertiary activities of an economy. And then we have compared the three sector and discuss the what is the GDP. So all the final goods and services which are produced by the three sectors of economy like primary, secondary and tertiary is called as the GDP, and in the GDP only the final goods and services has been added, not the intermediate goods and their values have never been added. So these topics we have discussed in the last video. So now we are going to start the next topic, historical changes in the sectors. In the sectors mean primary sector, secondary sector and tertiary sector. So all we know that India got freedom in 1947, and after 1947 there are a number of improvements have been taken place in all the three sectors. So first one is that is the agriculture sector or the farming sector. So different types of the methods, tools of farming and different types of the techniques have been changed, and the production is again changed. So during that time the people doing the shifting agriculture, and there is no use of HYB seeds, irrigation facility. But as the time passes with the development of the technology and different kinds of the invention in the field of the secondary and tertiary sector, so there are number of changes have been introduced in the agriculture sector. And all we know about that the green revolution in 1965 and 66 period. So that is a major tremendous change has been occurred in the agriculture sector. Then next one is the secondary. So all we know that the first industrial revolution have came in the that is in England, and after that in the 18th century, after that industrial revolution spread through the all world countries. So similarly India's again achieved a number of changes in the field of the industries, and again the production has been changed, the technology, and with the help of the transportation and the communication, the pace of the industrial revolution changes from time to time. And again in the GDP, that is again in the tertiary sector, and that is known as the service sector. So various types of the changes. So that all these changes they are only toward the positive changes. Clear? Positive changes mean increase in the production, increase in the skills of the people, then quality of the product has been changed, even the quantity has been again changed, then mechanization is there, industrialization is there, and technological innovations is there. So these are the different kinds of the innovations and changes have been occurred in the three sectors. Now the next topic is primary, secondary and tertiary sector in India. So these three sectors are very important, which are boosting the GDP of our country. And there is a very good example, and look according to 1973 and 74 here. This one is decade 1973 and 74, and this decade refers to 2013 and 14. So in 1973 and 4 you can see the this green this blue color shows the primary sector, red color shows the secondary, and yellowish color, that is greenish type, is called show the tertiary sector. So in 1973 and 4 you can see that there is highest percentage in terms of the primary sector with respect to GDP. Clear? This diagram refers to the GDP by primary, secondary and tertiary sector. So in the 1973 and 74 you can see that there is highest share of the agriculture sector, then followed by tertiary and then secondary sector. But in 2013 and 14 the changes which we have discussed, due to that the share of the tertiary sector that is increased and reach up to first rank, then occupied by second rank, that is the secondary, and third one is occupied by agriculture sector. So this one is the how the graph is increasing of the three sector, and mainly the main development activities has been done in the field of the that is the
service sector, which is called as the tertiary sector. Clear? Then raising importance of the production, raising importance of the tertiary sector in the production. So in the tertiary sector, the production increasing from 1973 to 2013 and 14 onwards, and in these a number of changes have been occurred. And why? First of all, because different kinds of several types of hospitals, education institutions, post office, telegraph services, police stations, and different types of courts like playgrounds, village administrative officer, municipal corporation, and defense services, transport, bank, insurance companies, all these are comes under the tertiary sector, and these are playing a very crucial role in the development of the tertiary sector, while all we know that India is a developing country. Then second one is industries and the agriculture, that boosting the tertiary sector, because industry providing the agriculture providing the raw material to secondary sector, and these secondary sector convert that into the final goods, and that final goods are distributed to whole India or whole world with the help of the tertiary and the tertiary sectors. And then next one is the share of the sectors in GDP. So what is the share? So in 1973, the highest share, that is again near about 50% share is occupied by tertiary sector, then near about 40% is occupied by primary sector, and only 10% is occupied by secondary sector. But in 2013 and 14, the highest percentage, that is near about 70%, that is the share in GDP, that is occupied by tertiary sector, and then 20% near about, that is secondary, and 10% near about by agriculture sector. So how we can see that the shift of the people from tertiary sector, from primary sector to tertiary sector. Clear? Those people who are engaged in the agriculture activity in 1973 and 4, they are engaging, or people moving or migrated from primary to the secondary or the tertiary sector. Why? Because people are having skills, and to fulfill their basic need, they move from agriculture to the secondary or the tertiary sector. Clear? The next one is the where are the most of the people employed. Clear? Where are the most of the people employed in three sectors? So in these in three sectors, there are few terms related to the employment. So what is employment, what is underemployment, and what is the disguised unemployment? So in this paragraph you can see different categories of the unemployment has been given. So with the help of few images, so in these slides we can see that the first one, the service sector, that is the largest sector in our country, and the gross value added. Gross value added means the services produced by the tertiary sector, that their value, that is called as the gross value added. So current price of the service sector, that is estimated in 2018 and 19, that is near about 92.26 lakh करोड़ INR मीन्स इंडियन नेशनल रुपीज़, यानी 2018-19 में जो सर्विस सेक्टर है इसके थ्रू प्रोड्यूस की गई जितनी भी सर्विसेज हैं उनकी जो वैल्यू है इंडियन नेशनल रुपीज़ में वो कितनी है 92.26 लाख करोड़ रुपीज़, जबकि सर्विस सेक्टर अकाउंट्स 54.40 नियर अबाउट 55% टोटल GVA मीन्स ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ 169.61 लाख करोड़ इंडियन रुपीज़, मतलब इतने रुपीज़ का इंडियन नेशनल रुपीज़ में 54.40 यानी 55% के करीब इतना अकाउंट करता है, जो कि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट वन, दैट इज इन 2017 the GDP composition of our country, that agriculture accounts 15.4% यानी 15%, then industry 23%, and largest share is occupied by service sector, that is the 61%. My main target is to that with the help of this slide you can aware how the contribution, which sector has the highest contribution. So with this slide we can easily say that the service sector is the highest contributor. Why? Because that produce the research, innovations, and high technological equipments, and the different kinds of the
explorations related to the scientific, medicinal or other types of the technology. Clear? So that's why the service sector is accounting highest share in our economy, and that is a very good sign for our country. Clear? Then next one, the economy of our country. If we are talking about the economy of country, so our economy is an agriculture economy, totally agricultural economy, and it is a developing market economy, very important feature, and it is the fifth largest economy by GDP. GDP के अकॉर्डिंग फिफ्थ है, जबकि बाय परचेजिंग पावर पैरिटी मीन्स द कैपेसिटी ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री टू परचेज द रिसोर्सेज, परचेज द थिंग्स. So by that triple P, that is the third largest economy in the world. Clear? So it is the fifth largest by GDP and third largest by purchasing power parity. So these are the main three slides. With the help of these three slides, we can see how the service sector is accounting highest proportion share in our economy. The next topic is unemployment. Clear? What is the unemployment? So here is one important term, that what is employment. So employment is any people who engage with any kind of work is called as the employment, and he or she can fulfill their basic need with the help of that employment. Clear? So here first topic, unemployment. So unemployment, there are few definitions related to the unemployment. So the state of being without any work, मतलब जब कोई भी आदमी किसी काम से एंगेज ना हो, दैट इज कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट. सो द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट एनी वर्क बोथ फॉर एन एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पर्सन फॉर अर्निंग वंस लाइवलीहुड इज मेंट बाय अनएम्प्लॉयमेंट. मतलब जब कोई भी, चाहे एजुकेटेड हो चाहे अनएजुकेटेड हो, किसी भी वर्क से एंगेज नहीं है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है. सेकंड, अनएम्प्लॉयमेंट इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन वेयर समवन ऑफ वर्किंग एज, मतलब वर्किंग एज, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्किंग एज ग्रुप कितना है हमारे कंट्री में, 15 ईयर्स से लेके 59 ईयर्स तक. ठीक है, 15 से लेके 59 ईयर तक वर्किंग एज ग्रुप है. तो सिचुएशन वेयर समवन ऑफ वर्किंग एज ग्रुप इज नॉट एबल टू गेट अ जॉब बट वुड लाइक टू बी इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट. क्लियर? तो जब किसी को इस वर्किंग एज ग्रुप में जॉब नहीं मिलती है, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट है. अगेन, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ फिनोमिना दैट अकर्स व्हेन अ पर्सन हु इज एक्टिवली सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट इज अनेबल टू फाइंड वर्क. मतलब जब कोई पर्सन जॉब के लिए सर्च भी कर रहा है, उसको कोई जॉब नहीं मिल रही है, तब भी उसको क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन जो है, अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे उसको. क्लियर? देन सेकंड वन, व्हाट इज द, अगेन एंड फ्यू मोर डेफिनेशंस. सो फर्स्ट वन, एम्प्लॉयमेंट सो इज डिफाइंड बाय ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और लेबर डे हम कब मनाते हैं, दैट इज द 1 मई, वर्ल्ड इंटरनेशनल लेबर डे. क्लियर? अकर्स व्हेन पीपल आर विदाउट जॉब, ये भी ILO क्या बोल रहा है, जब लोग क्या होंगे, विदाउट जॉब्स होंगे, एंड दे हैव बीन एक्टिवली लुक्ड फॉर वर्क विद इन द पास्ट 4 वीक्स. अब इन्होंने क्या कर दिया ILO ने, कि जो पिछले 4 हफ्तों से जॉब ढूंढ रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रही है, उसको क्या बोल देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बोल देंगे. क्लियर? उसके बाद है द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ अ मेजर. अब इन्होंने क्या बोल दिया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका भी फॉर्मूला है, इज द मेजर ऑफ द प्रेवलेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट इज़ कैलकुलेटेड एज परसेंटेज बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल बाय ऑल इंडिविजुअल करंटली इन द लेबर फोर्स. तो इसका डेफिनेशन, इसका सॉरी फॉर्मूला क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इजकल टू अनएम्प्लॉयड वर्कर, कितने अनएम्प्लॉयड वर्कर हैं, अपॉन टोटल लेबर फोर्स. फॉर एग्जांपल, टोटल लेबर फोर्स है हमारी 100, मान लो किसी भी कंट्री में इतने अनएम्प्लॉयड हैं, लेबर फोर्स मतलब इतने पर्सन है जिनको जॉब चाहिए, उनमें से अगर 20% को क्या मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड वर्कर है, तो क्या आ गया, ठीक है, यानी हर 5 में से एक बंदा जो है वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है. क्लियर? सो दैट इज द डेफिनेशन. उसके बाद है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अब कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो सकती है जी. क्लियर? राइट. उसके बाद एब्सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, किसी भी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कम है. अब नेचुरली जब हाई पॉपुलेशन होगी, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लो होंगी. उसके बाद सीजनल एम्प्लॉयमेंट है. सीजनल एम्प्लॉयमेंट है लाइक आपकी कॉफ़ी का सीज़न है, तो कॉफ़ी या टी का जो सीज़न है, ये मोस्टली जो है ये विंटर सीज़न के लिए परफेक्ट है. आइसक्रीम का जो है वो समर सीज़न के लिए परफेक्ट है. जो भी पर्सन इन चीज़ों से एंगेज हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो दूसरे सीज़न में जाके ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी एक इसका कॉजेज़ है. उसका जॉइंट फैमिली सिस्टम. अब जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या होती है, पॉपुलेशन हाई होती है सेम, और जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या होता है कि एक पर्सन कमा रहा है और बाकी जो हैं
वो खाने वाले हैं, तो वो भी एक कॉजेज है। उसके बाद इंक्रीजिंग टर्न आउट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी। अब क्या हो रहा है, यहाँ से कई लोग स्टूडेंट जो हैं वो ड्रॉप आउट कर रहे हैं, चाहे स्कूलिंग से ड्रॉप आउट कर रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो रहे हैं। तो ड्रॉप आउट भी एक वजह, जब बच्चा स्कूल नहीं जाएगा या प्रॉपर एजुकेशन नहीं लेगा तो उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट होगी। क्लियर। उसके बाद है स्लो डेवलपिंग ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज़ कम है हमारे कंट्री में, ठीक है। उसके बाद है इनसफिशिएंट रेट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, प्रोग्रेस की भी कमी हो सकती है। उसके बाद लैक ऑफ, उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पीपल एंगेज हैं, तो स्लो स्पीड ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर डेवलपमेंट हो गया। क्लियर। सो दीज आर द फ्यू कॉजेज, सो बेसिक कॉजेज दैट इज द हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ है, देखिए अंडर एम्प्लॉयमेंट है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। अंडर एम्प्लॉयमेंट में पर्सन तो एंगेज है, उसको जॉब मिली हुई है, बट वो क्या है, दैट इज़ अ सिचुएशन इन विच अ वर्कर इज एम्प्लॉयड। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट में वो एम्प्लॉयड है बट नॉट इन द डिज़ायर्ड कैपेसिटी, मतलब वो डिज़ायर्ड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने एमएससी की हुई है, ठीक है, एमएससी उसकी जॉब है, तो वो और साथ में मान लो फॉर एग्जांपल वो बीएड भी है, बीएड मीन्स एमएससी मास्टर फॉर साइंस एंड बीएड फॉर दैट इज़ द बैचलर ऑफ एजुकेशन। क्लियर। अब ये दोनों डिग्री उसके पास है और वो एक पीएन की जॉब कर रहा है फॉर एग्जांपल। तो ये क्या हुआ, अब पर्सन तो ये एंगेज है, ठीक है, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन एम्प्लॉयड है बट नॉट इन द डिजायर्ड कैपेसिटी, ठीक है, डिजायर्ड कैपेसिटी तो है नहीं उसमें। अब वो टीचर भी कर सकता है, वो किसी प्रोफेशनल कंपनी में जाके एज अ ट्यूटर, एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपनी सर्विसेज दे सकता है, बट वो उस क्या है, वो एक पीएन है, तो वो डिजायर्ड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नहीं है। उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है वर्क करने की, एफिशिएंसी ज़्यादा है, बट वो कहाँ पे एफिशिएंसी दिखा रहा है, जहाँ पे उसकी जो कैपेसिटी है वो अंडर एस्टिमेटेड है। सो दैट इज द अंडर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। वेदर इन टर्म्स ऑफ कंपनसेशन, आवर्स और लेवल ऑफ स्किल्स एंड एक्सपीरियंस while not technically unemployed, the underemployment are often competing फॉर अवेलेबल जॉब्स। अभी अंडर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन कब होगी, जब किसी कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होगी, सबसे हाईएस्ट होगी। जैसे इंडिया में अब 130 करोड़ के प्लस हमारी क्या है इस वक्त 2019 में पॉपुलेशन है, तो इंडिया में अंडर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन जो है वो है। सो क्या है, ए सिचुएशन वेयर वर्कर इज एम्प्लॉयड बट नॉट इन द डिजायर्ड कैपेसिटी। क्लियर। उसके बाद दो ये और टाइप्स आती हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। फर्स्ट वन इज द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड वन इज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इट इज़ अ सिचुएशन इन विच एन इंडिविजुअल अपीयर्स टू बी एम्प्लॉयड। एक सिचुएशन है, उसमें भी पर्सन क्या है, वो एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, वो काम में लगा हुआ है, बट ही डज नॉट एडेड टू द प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्टिविटी में उसका जो रोल है, जो उसकी वर्क है वो ऐड नहीं हो रहा है, दैट इज़ द प्रोडक्टिविटी वुड रिमेन द सेम। अब फॉर एग्जांपल इसको एक एग्जांपल की समझो। फॉर एग्जांपल ये कोई फील्ड है, इस फील्ड की कैपेसिटी है ये 1000 kg जो है क्रॉप्स प्रोड्यूस करेगा, वीट प्रोड्यूस करेगा, ये इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। और इस फील्ड के लिए वहाँ पे 10 वर्कर्स की ज़रूरत है, लेबर की, ठीक है, फार्मर्स की। अब फॉर एग्जांपल डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या हो जाता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 30% काम कर रहे हैं। अब 30% काम कर रहे हैं, तब भी प्रोडक्शन कितनी है, 1000 kg। इसको कितने चाहिए, 10 लीबर। अब 10 तो इसके हैं, 10 के लिए तो उनकी प्रोडक्टिविटी यूज़ हो रही है किसमें, 100,000 kg में, बट जो +20 है वो क्या हो गए, वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। इसको हिडन एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, छुपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। इसमें क्या होता है, पर्सन एम्प्लॉयड तो लगता है बट उसका रोल जो है वो प्रोडक्टिविटी में नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या, इट इज़ अ सिचुएशन in which an individual is not able to find a job due to certain months of a year, मतलब उसको कुछ साल के कुछ महीनों में जॉब नहीं मिलती, दैट इज कॉल्ड एज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, अब एग्जाम्पल क्या है डिस्गाइज का, व्हेन अ वर्कर वर्क दैट रिक्वायर ओनली 3 इंडिविजुअल फॉर इट्स कंप्लीशन और इज बीइंग डन बाय 5। मान लो किसी काम को 3 बंदों ने ख़त्म करना है, उसको 5 ख़त्म कर रहे हैं, तो वो डिस्गाइज है। एग्रीकल्चर लेबर फाइंड वर्क ओनली ड्यूरिंग द बिजी सीजन, दैट इज सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग एंड थ्रेसिंग। बाकी वर्क मंथ्स ऑफ द ईयर दे विल रिमेन अनएम्प्लॉयड, सो दैट इज द सीजनल एंड disguised unemployment. Clear? So okay student, with these images or slides we already discussed what is employment,
what is underemployment, what is the types of the employment like disguised unemployment, उसके बाद हमने डिस्कस की seasonal unemployment. So these are the important types of the unemployment. Clear? So these are important question. Why should we worried about underemployment? Clear? इससे क्या हो रही है, कंट्री की GDP लो हो रही है, जो रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसका यूटिलाइज नहीं हो रहा है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड लो हो रहा है, उनकी बेसिक फैसिलिटी नहीं फुलफिल हो रही हैं, बेसिक नीड नहीं फुलफिल हो रही हैं. सो दैट इज़ द नेगेटिव इम्पैक्ट. क्लियर? उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. और ईजी भी टॉपिक है, कोई इतना बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है. हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. अब क्रिएट कैसे एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना है, क्योंकि हमारे कंट्री में इस वक्त 130 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है, तो हमारे लिए चैलेंज है टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. दैट्स वाई कि सभी लोगों को क्या मिले, रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले और सभी अपनी बेसिक नीड को फुलफिल कर सकें. क्लियर? सो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे पहले देखिए 3 सेक्टर हैं, राइट? 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. तो तीनों से एक एक पॉइंट बनता है कि प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करने की जरूरत है. एग्रीकल्चर को, मोर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन would be increased, new technology innovation, HYV seeds, fertilizer should be utilized. Clear? उसके सेकेंडरी में more industry to be set up. Clear? इंडस्ट्री सेटअप होनी चाहिए. टर्शरी में मोर बैंकिंग सिस्टम शुड बी सेटअप. क्लियर? ट्रांसपोर्टेशन सेटअप होनी चाहिए, कम्युनिकेशन सेटअप हो, मीन्स एवरी टाइप ऑफ स्कूलिंग, गुड एजुकेशन, गुड हेल्थ केयर शुड बी डेवलप्ड. क्लियर? तो दीज आर द 3 पॉइंट तो ये हो गए. उसके बाद हेयर सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, दैट गवर्नमेंट शुड आल्सो लॉन्च वेरियस टाइप्स ऑफ द फैसिलिटीज एंड द पॉलिसीज फॉर द पीपल बाय देम गवर्नमेंट people getting the job. So here there is one important topic related to the that is government policies. So first that is the right to work. अब राइट टू वर्क मतलब सभी को काम करने का अधिकार है, और ये राइट टू वर्क जो है सबसे पहले 625 यानी 625 डिस्ट्रिक्ट में नियर अबाउट इम्प्लीमेंट किया गया. और ये इम्प्लीमेंट कब किया गया था? 2005 में. और 2005 में एक यूपीए गवर्नमेंट, यूपीए मतलब कांग्रेस, और यूपीए की फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. यूनाइटेड प्रोग्रेसिव, सिविक्स में पढ़ा होगा आपने, प्रोग्रेसिव अलायंस. ठीक है? 2 तरह के अलायंस है हमारे कंट्री में, यानी 2 तरह की पार्टी हैं. एक है बीजेपी. क्लियर? थोड़ा सा सिविक्स के ऊपर डिस्कस कर लें. एक है कांग्रेस. ठीक है जी? जो बीजेपी के सहयोगी दल है उनको बोलते हैं एनडीए, और एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. प्लीज़ राइट, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. और जो गवर्नमेंट कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं उनको बोलते हैं यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. क्लियर? तो दोनों में डिफरेंस बहुत है. क्लियर? तो ड्यूरिंग 2005 में यूपीए के टाइम ये पॉलिसी आई, और इस पॉलिसी का नाम था नरेगा. सबसे पहले इसको नरेगा बोलते थे, मनरेगा तो बाद में हुआ. क्लियर है? पहले इसका 2005 में जब 25th नरेगा जब सबसे पहले आई तो इसका नाम था नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. क्लियर? उसके बाद 2 अक्टूबर 2006 में इसका नेम चेंज किया गया यूपीए के थ्रू, और इसका नेम कर दिया गया मनरेगा. महात्मा गांधी नेम को इंट्रोड्यूस किया गया, NREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट. तो थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज स्लाइड्स. So dear student, this one is the full form of the मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. और यहाँ पे देखिए 100 लिखा हुआ है. 100 मीन 100 दिस मनरेगा स्कीम गिव अश्योरिटी टू द वर्कर फॉर 100 days वर्क. मतलब 100 दिन रोजगार देने का क्या करती है, ये अश्योरिटी देती है. क्लियर? और इसको कौन सा डेवलपमेंट, कौन सा मिनिस्ट्री जो है इसको चेकआउट करता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. क्लियर? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. क्लियर? याद रखना है मनरेगा, और मनरेगा किसके अंडर आती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. क्लियर? अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा 2005 में इसको लॉन्च किया गया, और डेट थी 25 अगस्त. 25 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया. ठीक है? लेजिस्लेशन लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ, और 25 अगस्त 2005 को इसको लॉन्च किया गया. अब ये क्या कर रहा है? लीगल गारंटी, लीगल कानूनी अधिकार दे रहा है 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट. मतलब अब कौन से लोग यहाँ पे काम करेंगे? जो होंगे बीपीएल फैमिली से. बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन. बिलो पॉवर्टी लाइन से जो भी हाउस होल्ड हैं उनको क्या मिलेगा? 100 day का श्योरिटी, लीगल गारंटी, राइट मिल रहा है, जिसको हम बोलते हैं राइट टू वर्क. क्लियर? और राइट टू वर्क किस
पॉलिसी के अंडर, किस प्लानिंग के अंडर मिल रहा है, दैट इज़ द नरेगा या मनरेगा। क्लियर। बीपीएल फैमिली को मिल रहा है। एम्प्लॉयमेंट विद इन द 15 डेज ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जब किसी को भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए वो एक एप्लीकेशन देगा। कहाँ पे एप्लीकेशन पुट करेगा? ग्राम पंचायत में, जो भी उसकी ग्राम पंचायत है। ठीक है जी, ग्राम पंचायत। और ये बेसिकली रूरल एरिया के लिए है, तो रूरल एरिया में ग्राम पंचायत होती है, तो ग्राम पंचायत में एप्लीकेशन पुट करेगा। जो बीपीएल फैमिली का जो उसका कार्ड बना हुआ है, मनरेगा कार्ड होता है एक, तो उसका वहाँ पे वो एप्लीकेशन पुट करेगा ग्राम पंचायत में, और ग्राम पंचायत उसको 15 डेज़ के अंदर क्या करेगी? रोजगार जो है वो प्रोवाइड करेगी विद इन द वर्क विद इन द 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर के बीच में उसके घर के रेजिडेंस ऑफ प्लेस से विद इन द 5 किलोमीटर। क्लियर। 5 किलोमीटर के अंदर उसको क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। पेमेंट विद इन 50 डेज, यानी जो भी उसकी पेमेंट होगी वो भी कितने दिनों में? 15 डेज में पेमेंट मिलेगी। नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पॉलिसी और दिस स्कीम, दैट इज़ द नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मेल फीमेल सेक्स के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और बेसिक वर्क साइट फैसिलिटी, जितनी भी वह एक वर्कर्स के लिए उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो भी फैसिलिटी चाहिए वो उसको मिलेंगी। क्लियर। दिस वन इज़ द इंट्रोडक्शन, आई होप यू अंडरस्टैंड। This is called as the right to work. Clear. Next, the Manrega stipulates that work must be targeted toward a set of specific rural development activities. सब अब इन ये क्या क्या काम करेंगे, इनको क्या काम मिलता है? वाटर कंजर्वेशन एंड हार्वेस्टिंग। क्लियर। 3rd चैप्टर ज्योग्राफी में पढ़ा है, वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग के काम मिलेंगे। अफॉरेस्टेशन, इनसे पेड़ लगवाए जा सकते हैं। रूरल कनेक्टिविटी, रोड जो है रूरल को वो काम करवाया जा सकता है। फ्लड कंट्रोल, फ्लड कंट्रोल के लिए चेक डैम्स बनवाए जा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर्स ऑफ एम्बैकमेंट, किसी नदी के किनारे जो साइड में चेक डैम बनाते हैं, एम्बैकमेंट्स बनाते हैं, वो लगवा सकते हैं। डिगिंग ऑफ न्यू टैंक्स एंड पॉन्ड्स, रूरल एरिया में वाटर कंजर्वेशन के लिए टैंक्स पॉन्ड्स उनकी सफाई मेंटेनेंस वो करवा सकते हैं। परकोलेशन टैंक्स, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए जो टैंक बनते हैं उनको परकोलेशन टैंक बोलते हैं, वो बनवा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल चेक डैम्स। क्लियर। सो दीज आर द वर्क्स दैट शुड बी डन बाय द मनरेगा people, those are connected with that मनरेगा कार्ड। उसके बाद बेसिक फीचर, तो फर्स्ट बेसिक फीचर दैट इज 100 डेज वेजेस एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज इफ वर्क नॉट प्रोवाइडेड। आप फॉर एग्जांपल मान लो किसी को 100 डेज में सिर्फ उसको सिर्फ 75 डेज के लिए क्या मिलता है? वर्क मिलता है। अब 75 डेज तो वर्क मिला, जो रिमेनिंग 25 हैं, एक साल में अगर उसको 25 दिनों के लिए काम नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट उसको क्या प्रोवाइड करेगी? यानी उनकी ग्राम पंचायत उनको प्रोवाइड करेगी, दैट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, यानी बेरोजगारी भत्ता उन 25 दिनों का प्रोवाइड करेगी। और अभी एट प्रेजेंट जो है 202 रुपीज़ जो है वो वेजेस कर दिए हैं किसकी? मनरेगा पीपल की, जो मनरेगा से एंगेज है। 202। क्लियर। ये हर स्टेट के अकॉर्डिंग वेरी करता है, तो मैं आपको हिमाचल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ इस वक्त एट प्रेजेंट ये रेट यहाँ पे चल रहा है। क्लियर। उसके बाद अ फिक्स टाइमलाइन फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस कंपनसेशन फॉर डिलेड वर्क में, यानी 15 दिन के अंदर उनको क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे, तो फिक्स टाइमलाइन है। ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंट में पैसे आते हैं, और पूरी फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ग्राम पंचायत। उसके बाद वेजेस टू बी क्रेडिटेड टू बैंक एंड पोस्ट ऑफिस अकाउंट, जो भी पोस्ट ऑफिस अकाउंट या बैंक अकाउंट उन्होंने दिया वहाँ पे उनको क्रेडिट किए जाएंगे वो पैसे। क्लियर। सो दीज आर द फ्यू फीचर्स ऑफ द मनरेगा. So this one is clear. I hope all of you understand this topic, that is Manrega and Narega. So Narega, that is in 25th August 2005 को एक स्कीम आई, उसका नाम रखा गया नरेगा, और इसी नरेगा का नेम 2 अक्टूबर 2006 को इसका नेम चेंज कर दिया और कर दिया मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम बोलते हैं राइट टू वर्क. सो दिस इज अंडर द हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री, दैट इज अ डेवलपिंग कंट्री. तो यहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को बूस्ट करेंगे, इंडस्ट्री सेक्टर को, टर्शरी सेक्टर को, बैंकिंग सेक्टर को लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे. क्लियर. प्रोवाइडिंग टू द लोन, इंश्योरेंस ऑफ द पीपल. क्लियर. एंड मोर अपॉर्चुनिटीज शुड बी गिवन टू द पीपल. मैं उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, मीन्स हर फील्ड में देयर हैज़ बीन डेवलपमेंट शुड बी टेकन प्लेस, एंड बाय दीज, एंड अगेन दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हाउस होल्ड इंडस्ट्री, मीडियम लार्ज स्केल और इंडस्ट्री शुड बी developed properly. So these are the important topics, points under the topic, that is how to create more employment in the India or in developing country. So this one is the important questions. Then in the next lecture video we will discuss the division of sector as organized and unorganized sector, and public, private and the joint sector, and how to protect worker in an organized sector. So
this is for today lecture. I hope all of you like this video. Thank you very much.